Okay, great. Thank you for the confirmation. Now I'm glad to meet you all once again. Our last session was, I believe, last week. It's been quite some time. And we've had about 10, 11 sessions of Essentials Concept Clarity series already. Some of you may have seen some of the lectures, and some of you have not been able to join live. We have uploaded everything on our YouTube channel, so you can go and type the Cyclopedia on YouTube. You'll find all the lectures over there. And today we will be covering a very important topic from biopsychology, which is extremely important. It carries a lot of weightage in all of your entrance exams, be it master's entrance exams, be it UGC NET, be it MCLIN-SCI, be it GATE. You will find a question repeatedly, and that topic is action potential. And why we've chosen that topic is because students can sometimes struggle to understand and remember the sequence, the movement of ions, the different phases of action potential, what is depolarization, what happens to the movement of ions in depolarization, what is coming out, what is going inside, what happens in repolarization, hyperpolarization. So through this session, we aim to simplify all of that for you. And this is the last subject that we're covering as a part of Essentials Concept Clarity series. And for those of you who are preparing for MCLIN-SCI or UGC NET, I also want to share that our course is beginning very soon. It's beginning on 1st July itself. And a few important dates for those who have already registered or those who are planning to register. Today at 6 p.m., we are opening a pre-assessment mock test, which is basically a starting exam that you will give. Some questions replicating the MCLIN-SCI and UGC NET paper pattern. So by giving that mock test, you will get an analysis at the end through which you will be able to understand what your baseline performance is, what your baseline score is, what your strengths are, what your weaknesses are, even before you have started preparation, so that it can give you some direction. And after a few months of preparation, you can, of course, compare your performance. And on 30th, which is day after tomorrow, we have an orientation session where we'll help you build a strategy for the next 8 to 10 months. We'll help you understand how to access the course recordings, the material, the portal, everything. We'll also take you through the course calendar. So yes, that is about our course. Now, I would also like to introduce the resource person for today, which is Dr. Deeksha. She is a great resource person. She is absolutely amazing when it comes to teaching subjects of psychology, especially biopsychology. We have attended some of our sessions ourselves, and because we loved it so much, we knew that we wanted her to come and teach you as well. She is currently an assistant professor and she has a lot of experience when it comes to teaching students. She knows how to simplify concepts. She knows how to break them down in a way that students can understand them. And her experience is surely going to help you out. So, hopefully, you can start by presenting your screen. Hello, everyone. First of all, thank you, Vidhi, for the lovely introduction. And hello, everybody. Before beginning the session, I would like to know about your background that what are you people doing? Are you in your master's or are you in your bachelor's? So, if you could just type that in the chat box, then it will acquaint me with my audience and the level of depth that I need to cover for today's session. Till then, I will present my screen as well. Preparing for M clinical side. Okay. Done with bachelor's. Okay. Okay. Completed bachelor's. Preparing for net. Um, okay. Vidhi ma'am, will it be okay for you to share the screen because I am facing some issues over here? Currently doing masters in PSC. Okay. Vidhi ma'am. Yes, we are sharing. If that works, we'll just share right now. Yeah, yeah.
Okay, so I see a mix kind of audience that you are either in your bachelor's or you are doing your master's, and some of you are preparing for UGC NET, and then you're also preparing for your M Clinical Sci, which was previously known as MPhil Wala exam. Glad to hear that. So we have a mix of audience here, and before we begin the session, like while all the ma'am is trying to share her screen and all, I would just like to know that what is your understanding of biopsychology? What is biopsychology to you? Hunger, sleep, hormones, neurons. Okay. Mind body connection, neurotransmitters. What else? Growth, development. I see. Behavior and mental processes. Okay. Physiological processes involved in explaining behavior. Okay. Biology plus psychology. Wonderful. Yeah. The screen is visible to me. Is it visible to each and every one? Yes. Okay. Okay. Yes. So, will this video be uploaded? I have no idea. You can ask the management team. Yes, chalo. So I have a lot of wonderful answers over here regarding biopsychology. And like some of you mentioned, that brain, nervous system, and biological factors and everything influences behavior. So yes, you all are correct that biopsychology is the subject that combines two of the subjects, which is biology and psychology. ठीक है? तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज एसेंशियली एवरीथिंग दैट मेक्स अस ह्यूमन, है ना? एवरीथिंग that you experience is because of the biology, huh? And if we combine biology and psychology, so it essentially means that how the biological, or how does our biology influences our behavior, or essentially how does the biological factors such as neurotransmitters, such as hormones, and then also our brain structures, how do they influence our overall behavior, our personality, our thinking ability, intelligence, and every aspect of our behavior, our human behavior, is influenced by our biological basis. So, if we go by the definition, so biopsychology is a subject that tries to understand that how does the biological basis, such as the neurotransmitters, brain areas, hormones, genes, and so on, how do these factors influence the overall behavior of a person or of an individual? Okay, and are we aware of the fact that there are certain divisions of APA, American Psychological Association के कुछ divisions है, क्या हमें पता है उसके बारे में? Yes. So, do you know of any division that is focused for biopsychology, or any? Are you aware of the division that is purely dedicated to biopsychology? No. Okay. So the sixth division of APA is dedicated to the study of biopsychology. Okay. So the sixth division of APA, it primarily focuses on researching on the aspects of biopsychology. Just a minute, ma'am, the screen is not visible.
Yes. Okay. So it's the sixth division of APA that primarily focuses on the subject area of biopsychology. And there are total 54 divisions of APA altogether that have different focus areas, and they are dedicated towards different fields of psychology. Now, for today, ma'am, can we go to the next slide? Yes. So for today, the topics that we will be covering over here are neurons, like basically what does a neuron essentially looks like, and then we will also be covering topics that are related to action potential and graded potential. And at the end, we will be solving some MCQ questions. So make sure that you are here till the end of the class and don't run away in the mid of the session. Okay. Next slide. Yes. So moving on to neurons, what are neurons according to you? Any answer, any response? Most basic unit of nervous system. Very good. So our nervous system, which essentially includes the central nervous system एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना. तो ये दो हमारे नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं, जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. उसका सबसे बेसिक यूनिट है दैट इज अ न्यूरॉन. एंड व्हाट इज अ न्यूरॉन? न्यूरॉन इज एसेंशियली अ सेल. ठीक है. न्यूरॉन एक स्पेशल प्रकार का सेल है जो बनाता है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को. एंड इफ आई टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है ना, हमारी पूरी जो बॉडी है वो सेल से बनी है. अब यही सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज को, और यही टिश्यूज मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन को, और यही ऑर्गन जो है मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को. ठीक है. आई होप whatever I'm writing over here is little visible to you. So essentially I've written that cells makes up the tissue, tissues makes up the organ, and organs collectively make up the organ system. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं नर्वस सिस्टम की, या आई विल डू दैट. थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. या सो इफ आई टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम, तो ये हमारा सेल्यूलर लेवल पे किससे बना है? न्यूरॉन से बना है. ठीक है. फिर ये न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाते हैं? न्यूरॉन्स प्लस ग्लियल सेल्स ऑल्सो. आई होप यू आर अवेयर ऑफ ग्लियल सेल्स. अगर नहीं पता है तो ब्रेन में सपोर्ट सेल्स भी होते हैं जिन्हें ग्लियल सेल्स कहते हैं. अभी आगे वी विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल इन ब्रीफ ओनली. या देन yes, then neurons make up the neuronal tissues, and neuronal tissues makes up the organ which is the brain and the spinal cord. एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाता है किसको? ये मिलके बनाता है हमारे ऑर्गन सिस्टम को, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम. सो दिस इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इतना तो हमें पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बनते हैं, और ह्यूमंस जो है वो भी सेल से बने हैं. एंड वी आर व्हाट? वी आर मल्टी सेल्यूलर बीइंग्स. मल्टी सेल्यूलर मतलब एक सेल नहीं है हमारी बॉडी में, देयर आर मल्टीपल सेल्स इन आवर बॉडी. And today we will be discussing about one specialized cell that is called as the neuron. And a neuron is essentially something that helps in the communication within the brain. मतलब ये न्यूरॉन ही है जो हमारे ब्रेन के अंदर हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. It's the basic building block of our brain, our spinal cord, our peripheral nervous system and everything. ठीक है. अब सेल्स जो है या न्यूरॉन जो है, इसमें खास बात क्या है? सो न्यूरॉन आर केपेबल टू कम्युनिकेट एंड टू पास ऑन मैसेजेस
फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ठीक है, तो न्यूरॉन भी एक सेल है। फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट सेल्स इन द बॉडी, जैसे आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी, बट व्हाट मेक्स अ न्यूरॉन स्पेशल इज दैट इट इज केपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग, it is capable of transmitting messages, it is capable of transmitting signals from one neuron to the other. ठीक है, and then a human brain essentially consists of 100 billion neurons. हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, या essentially in the human body there are 100 billions of neurons which are capable to communicate and transmit signals. Now we will discuss that how does a typical neuron actually looks like. We will see the structure of a neuron कि ये actually में दिखता कैसे है और होता क्या है यहाँ पे. ठीक है, so as you can see, I'll take the example of my hand and then I will move to the structure. तो अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो ये क्या है, the fingers they act as the dendrites. So if we see in a neuron का structure, ये branches like जो structure है यहाँ पे, these are what? These are the dendrites. And what do dendrites do? Dendrites they receive information. तो मतलब न्यूरॉन्स को जो मैसेजेस आते हैं ना, वो डेंड्राइट्स पे आते हैं. And if you take your hand, then the fingers act as the dendrite. Then if we move ahead, so this middle section, ये जो मेरा palm का section है, what will be that? That will be the cell body या सोमा जिसे कहते हैं. ठीक है, और ये जो आपको बीच का सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे न्यूक्लियस, निसल बॉडी, गोल्जी अपैरेटस, आरईआर, ये सारी चीजें लिखी है. सो एसेंशियली कोई भी सेल होता है ना, स्पेशली अ यूकैरियोटिक सेल, सो वहां पे आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा. न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज द प्लेस वेयर द डीएनए एंड द क्रोमोसोम्स रिसाइड विद इन द सेल. Okay, so if I talk about a neuron, then we have dendrites. Dendrites are the receiving part. Then we have the soma or the cell body, जो क्या है, ये हमारे सेल की सारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, और यहीं पे हमारा डीएनए और न्यूक्लियस है. ओके, एंड देन इफ वी मूव अहेड, what is this part? This part is called as the axon. And what does axon do? Axon basically transmits information. ठीक है, एक्सिन जो है ये हमारे इंफॉर्मेशन को या न्यूरल इम्पल्स को या मैसेजेस को कंडक्ट करने में हेल्प करता है. सो एक्सिन इज द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन. एंड देन हियर एज यू कैन सी दिस पार्ट, ये जो है, दीज आर रेफर टू एज एक्सिन टर्मिनल्स. और यहाँ एक्सिन टर्मिनल्स में क्या स्टोर होता है? कैन एनीवन टेल मी, बिकॉज यू आर फ्रॉम बैचलर्स एंड मास्टर्स. What is stored in the axon? Neurotransmitters. Very good, smart children. चलो, तो यहाँ हमारे axon terminals में क्या स्टोर होता है? यहाँ पे स्टोर होते हैं neurotransmitters. And neurotransmitters are what? Neurotransmitters are chemicals via which a neuron communicates between the other neuron. Like essentially neurotransmitters जो है वो मैसेज भेजते हैं दूसरे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को. So I hope this neuron का structure is clear to you with the analogy of my hand, that the receiving part are the dendrites, like you can see my fingers, those are the dendrites. Then this middle part is the cell body, और यही cell body में क्या है? सारा का सारा न्यूक्लियस, डीएनए मटेरियल, उसके बाद सारी की सारी जो इंटीग्रेशन प्रोसेस होता है सेल के अंदर, वो यहीं पे होता है. लाइक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं यहाँ से, इम्पल्सेस भी यहीं से ट्रांसपोर्ट होती है. ठीक है, एंड देन एज वी मूव ऑन, दिस पार्ट इज रेफर टू एज द एक्सिन. और ये एक्सिन पे क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन आई है, डेंड्राइट्स लेकर आए हैं, दैट इज ट्रांसमिटेड वाया द एक्सिन. एंड देन देयर इज अनदर पार्ट टू इट कॉल्ड एज द एक्सिन टर्मिनल्स. ये जो लास्ट का हिस्सा है उसे हम कहते हैं एक्सिन टर्मिनल्स या टर्मिनल वेसिकल्स, जहां पे स्टोर होते हैं neurotransmitters. So I hope this basic structure of a neuron is clear to you all. ठीक है. Now, yes, can we move to the next slide? Yeah, we have everything written over here, all the definitions of every part. Now we will just look at it one by one कि actually में यहाँ पे हो क्या रहा है. So cell body, or which is also referred to as soma, what is it? It is the main part
that helps in what? It helps in all the neuronal functioning and it also integrates the incoming signals. और यहीं पे इसको हम कहते हैं it is the metabolic center of the neuron. क्यों metabolic center? Because यहीं पे एनर्जी जो है, जो सेल को फंक्शनिंग में हेल्प करती है या मैसेजेस को पास ऑन करने में हेल्प करती है, ये सारी की सारी एनर्जी एक न्यूरॉन को उसके सेल बॉडी से ही मिलती है. ओके, देन like I said, what are dendrites? Dendrites are the receiving part of neurons. Neurons का जो receiving end है, वो है हमारे dendrites. These are the receiving structures. Then axons are what? Axons are long. ये this part of my hand. And axons do what? They are the transmitting part. Dendrites जो है, they are the receiving part. Axons are the transmitting part. अब information आ तो गई, but what will you do with the information if it is not transmitted? So we have the axons that help in transmitting the information that we have received. Now, one interesting part of an axon is that axon जो है ना, it is covered with something called as the myelin sheath. अब like I said, axon जो है ये हमें information या messages को pass on करने में help करता है. But how does it actually do it? So on the axon, there, ma'am, can we move to the next slide where we have myelin sheath? Yeah, thank you. So as you can see यहाँ पर ये जो yellow part में है ना axon पे, this is referred to as the myelin sheath. और ये myelin sheath क्या है? ये myelin sheath, it speeds up the action potential. Very good. So myelin sheath is a fatty substance. It's a fatty layer which is present on the axon. And what does it do? It helps in transmitting the action potential very, very fast. मतलब जो messages बहुत फटाफट से transmit हो जाते हैं. Like if I say, it insulates the axon. So in our daily life, we perform a lot of activities. हम लोग बात करते हैं, हम walk करते हैं, we think a lot, we do a lot of activities throughout the day. है ना? We don't do just one activity and sit throughout the day. It does not happen that way. So myelin sheath जो है ना, ये क्या करती है? ये हमारे messages को फटाफट से transmit होने में मदद करती है. And myelin sheath is not present across the axon. There are certain spaces where the myelin sheath is not present, and that is referred to as the nodes of Ranvier. So myelin sheath is not there on the entire axon, but it is there on some parts of the axon, and where the myelin sheath is not present, it is referred to as the node of Ranvier. और यही node of Ranvier पे से ना हमारे जो messages है या impulses है वो travel करते हैं. So it is on the nodes of Ranvier that the messages from the cell body, they reach at a particular point over here called the axon hillock. यहाँ से messages जो है ये नीचे जाते हैं. I will come to axon hillock once again, but here we are only discussing about myelin sheath first. So myelin sheath क्या करती है? Myelin sheath हमारे action potential को speed up करती है और axon को insulate करती है ताकि messages जो है, electrical impulse जो है वो फटाफट से हो जाए. ठीक है मैम, द प्रीवियस स्लाइड प्लीज. देन इफ वी टॉक अबाउट माइलिन शीथ, देन माइलिन शीथ जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स मेक द माइलिन शीथ. So in the central nervous system, it's the oligodendrocytes that makes up the myelin sheath. And in the peripheral nervous system, we have separate kind of cells referred to as the Schwann cells, and those makes up the myelin sheath in the peripheral nervous system. Now, yes, this is very, very important to remember कि कौन से हिस्से में, like which nervous system, in like what cells makes up the myelin sheath in what part of the brain. So in the CNS we have the oligodendrocytes, and in the peripheral nervous system it's the Schwann cells that makes up the myelin sheath. ठीक है, okay. Then nodes of Ranvier, like I said, these are what? These are the small gaps between the myelin sheath, between the axon that takes the neural impulses. Also, they are also help in the saltatory conduction. Like someone also mentioned कि leak नहीं होने देते हैं membrane के अंदर. Yes, that is also relevant. वो भी सही बात है.
नाउ एक्सन टर्मिनल्स क्या है? एक्सन टर्मिनल्स आर द टर्मिनल बटन्स जहां पे स्टोर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंड यहीं से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो सिक्रीट होते हैं एंड दे आर गिवन आउट इन द साइनैप्स एंड they are taken up by the postsynaptic neuron. Yes, I will do it while I'm explaining the action potential part. I will do that. Then synapses are what? Synapses are the space between a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron. ठीक है, तो ये जंक्शन है, साइनैप्स जो है ये गैप है एक न्यूरॉन, और समझो कि ये एक न्यूरॉन है और इसके पीछे एक न्यूरॉन है, सो इसके बीच का जो गैप है दैट इज रेफर टू एज द synapse, the gap, and in the synapse only the neurotransmitters are given out. Itna, are we clear with this part? Okay. Okay, thank you for the confirmation. In case if you do not understand anything, you can just raise your hand or type it in the chat box and I will stop there and there and answer your relevant question. Yes, ma'am. Next slide. Yes, next slide. Yes. Now, अभी तो हमने ये देखा कि न्यूरॉन एक्चुअली में दिखता कैसा है, what are its structure and what is actually happening within a neuron. And before moving on to this topic, I would just like to tell you all that a neuron is essentially classified based on two aspects. There are different kinds of neurons in the body and they are classified based on their structure, and they are also classified based on their functions also. ठीक है, तो न्यूरॉन जो है, अभी जो हमने एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखा न्यूरॉन का, डू यू नो व्हाट इज दैट न्यूरॉन? लाइक कौन सा स्ट्रक्चर है वो? व्हाट काइंड ऑफ अ न्यूरॉन इज दैट बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर? मोटर, सेंसरी. Okay. So basically it's a multipolar neuron. ठीक है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ना देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स. Like for example, there's a unipolar neuron, then there is a pseudo unipolar neuron, then we have multipolar neuron, then there are anaxonic neurons, and yes, and based on the functions there are separate neurons. So if I talk about a multipolar neuron, तो एक multipolar neuron में क्या होता है ना, there are multiple dendrites and there is one axon to it. Like you saw in the previous image कि वहां पे कितने सारे dendrites थे ना. So in a multipolar neuron, there are multiple dendrites on that specific neuron and there is just one axon. And if I talk about a anaxonic neuron, for example, तो anaxonic neuron में क्या होता है ना, there is no axon but there is a cell body to it. ठीक है, I'll not be covering each of the structures. I just wanted to let you know that neurons are classified based on their structure and based on their functions also. So यहाँ पे we saw two examples. एक है multipolar neuron, दूसरा है anaxonic neuron. And based on the functions of a neuron, they are classified as sensory, motor, and interneuron. ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे. फंक्शन मतलब ये क्या काम करता है, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन लेके आता है, किस प्रकार के मैसेजेस कंडक्ट करता है, उसके हिसाब से भी न्यूरॉन्स को हम क्लासिफाई करते हैं. सो बेस्ड ऑन द फंक्शन there are sensory neurons, there are motor neurons, and then there are interneurons. So if I talk about the sensory neurons, so sensory neurons do what? They take up the sensory information from all the sensory organs up till the brain. मतलब जैसे for example retina में we have sensory neurons. तो रेटिना से क्या होगा, रेटिना से आई की इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स ऊपर ब्रेन तक लेकर जाएंगे. ठीक है, उसके बाद मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? मोटर न्यूरॉन ब्रेन से वापस बॉडी तक इंफॉर्मेशन लेके आता है. सो मोटर न्यूरॉन्स दे फंक्शन इन अ इफरेंट मैनर. इफरेंट मतलब एग्जिटिंग फ्रॉम द ब्रेन. अब ब्रेन से जब नीचे इंफॉर्मेशन आती है, हमारे बॉडी तक आती है, तो वो इफरेंट
रास्ते से आती है, या दे टेक अप द इफरेंट पाथवे, एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो एफरेंट पाथवे से होते हुए ब्रेन तक ऊपर जाती है। तो ये जो एफरेंट पाथवेज है वो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स है, एंड द इफरेंट पाथवेज आर मेड अप ऑफ द the efferent pathways are made up of the motor neurons, ऐसे है, ठीक है। And then interneurons are what? Interneurons are the middlemen. They are the middlemen between the sensory neurons and the motor neurons. Now, for example, whenever you touch a hot object, जैसे आपने किसी गर्म चीज को पकड़ लिया, ठीक है, तो what is the immediate reaction? You will take away your hand, right? तो इन केसेस में the information is carried to the interneuron और फिर वहीं से मैसेज इंटरप्रेट हो जाता है। I will tell you how. So whenever you touch a hot object, आपने किसी गर्म चीज को पकड़ा है, क्या होगा? इमीडिएटली हम हाथ पीछे ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन गई, या पाम में सेंसरी न्यूरॉन्स थे फॉर टच, यहाँ से इंफॉर्मेशन गई ऊपर टू द इंटरन्यूरॉन which are there in the spinal cord. Then from the interneuron the message was given out to the motor neuron. And what does a motor neuron do? Motor neuron हमें motor movements को करने में help करता है. So taking away the hand is a motor action, no? So that is done by the motor neuron, or motor neurons helps in that. And then from there it will go to the effector muscle. Effector muscle मतलब I have to take away my hand and my hand is the effector muscle over here. ठीक है, तो इंटरन्यूरॉन जो है दे एक्ट एज द मिडलमैन बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड द मोटर न्यूरॉन्स, एंड आई होप दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स इज क्लियर टू यू। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग प्रकार है, मल्टीपोलर है, एनाएक्सोनिक है, उसके बाद बाइपोलर है, यूनिपोलर है, स्यूडो यूनिपोलर है, बट आई हैव ओनली डिस्कस्ड मल्टीपोलर एंड एनाएक्सोनिक, एंड बेस्ड ऑन द फंक्शंस वी हैव थ्री काइंड्स, सेंसरी, मोटर एंड इंटरन्यूरॉन। सेंसरी एफरेंट, उसके बाद मोटर जो है वो इफरेंट है, और इंटरन्यूरॉन जो है वो मिडलमैन है, ठीक है। चलो yes now we will see what is a how does a typical neuron actually looks like, कि इसके अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं, ठीक है। सो in a cell there is something called as the cell membrane, ठीक है, and this cell membrane is selectively permeable. Selectively permeable मतलब यहाँ पे कुछ ही चीजों को आने की अनुमति है या परमिशन है, और कुछ चीजों को यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है, ठीक है। सो अ टिपिकल सेल एक्चुअली लुक्स लाइक दिस। तो एक न्यूरॉन के अंदर क्या होता है ना, यहाँ अंदर की साइड में देर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्यादातर है हमारे पास पोटेशियम। अब यू विल से कि पोटेशियम की साइन तो प्लस में है तो ये नेगेटिव कैसे हुआ, बट पोटेशियम की जो चार्ज है ना ये बहुत छोटी पॉजिटिव है ऐसा, एंड देर आर अ लॉट ऑफ अदर एनेऑन्स ऑल्सो। अब एनेऑन्स क्या होते हैं? एनेऑन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। एनेऑन्स जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर हम एक टिपिकल न्यूरॉन को देखें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने, आयंस देखने के लिए मिलते हैं। आयंस आर व्हाट? आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द सेल। तो अंदर के साइड में क्या है? अंदर की साइड में हेवी कॉन्सेंट्रेशन में है हमारे पोटेशियम और एनेऑन्स। एनेऑन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ऐसे बड़े बड़े, हम यहाँ पे बड़े बड़े नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं, ठीक है। एंड देन इफ वी सी इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड, मतलब एक सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर नेगेटिव है, और सेल के बाहर क्या है, सेल के बाहर बहुत सारा सोडियम है, यहाँ पे लिखा हुआ है Na is what? Na is sodium, and sodium has a positive charge. सोडियम जो है ये काफी पॉजिटिव चार्ज में है, एंड बाहर की साइड में जो एनवायरमेंट है सेल का, दैट इज मोर पॉजिटिव कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल। बाहरी जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू द इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है, वी विल सी। देन वी हैव क्लोराइड। क्लोराइड जो है, क्लोराइड की चार्ज जो है वो नेगेटिव है, इट्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड एनेऑन, एंड इट इज फाउंड आउटसाइड द सेल, ठीक है। ये बाहर देखने के लिए ज्यादा मिलता है।
और बाहर में हमारे पास एक और चीज है दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम, Ca2+ से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इफ आई से न्यूरॉन के अंदर बाहरी जो स्ट्रक्चर है, आउटर साइड ऑफ द न्यूरॉन इज वेरी वेरी पॉजिटिव. And why is it positive? Because we have sodium ions, and then we also have calcium, and then we have other cations also. Ions जो होते हैं उनको दो, like there are two kinds, cations and anions. Cations positive charge वाले होते हैं और anions जो यहाँ पे लिखा है वो negative charge वाले होते हैं, ठीक है। तो अंदर की साइड में काफी ज्यादा anions हैं और बाहर की साइड में काफी ज्यादा cations हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार की जो डिफरेंस देखने के लिए मिलती है एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, वो यहाँ पे वी कैन सी दैट. बट व्हाट एक्चुअली मेक्स दिस डिस्ट्रीब्यूशन, या ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को कैसे मिलता है, वी विल टॉक अबाउट दैट. नाउ इफ आई आस्क यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयॉन्स ओवर हियर, कि बाहर बहुत पॉजिटिव है और अंदर बहुत नेगेटिव है, इज इट इक्वल और इज इट अनइक्वल? Is there a equilibrium or is there a disequilibrium over here? Equal. Disequilibrium. Disequilibrium. Very good. चलो, तो ये जो है ना, यहाँ पे बताओ ये एक समान है क्या? Is there equality over here? नहीं, बाहर ज्यादा पॉजिटिव है, अंदर ज्यादा नेगेटिव है, तो ये तो इक्वल कहाँ से हुआ? ये तो डिसइक्विलिब्रियम हुआ, है ना? अब yes, so a cell has to maintain this disequilibrium. And how does a cell actually maintains, या neuron actually maintains this disequilibrium? So there are two forces that are acting on this neuron का जो ये disequilibrium है ना, ये actually में ये maintain कैसे होता है, I will show you that. Ma'am, can you please change the slide or share a white screen या whiteboard? अच्छा, ओके. सो जो हमने ये देखा कि बाहर जो है दैट इज मोर पॉजिटिव एंड अंदर जो है वो ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है. नेगेटिव क्यों है? बिकॉज देर आर एनियॉन्स इनसाइड, देर आर पोटेशियम इनसाइड, एंड आउटर साइड में है वी हैव सोडियम एंड वी हैव कैल्शियम ऑल्सो इन द आउटर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन. तो यहाँ पे ना देर आर टू ग्रेडियंट्स दैट एक्चुअली एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन. ये यहाँ पे किस तरीके से होता है, आई विल शो यू. So there is one concentration gradient which works on the principle of diffusion. ठीक है. अब diffusion का मतलब चीजें जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है. अब आप मानो कि लाइक अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है, हम सब एसी के रूम में बैठे हैं, बट एसी तो एक ही जगह पे है ना, और वो पूरे कमरे को ठंडा कर देता है, ठीक है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज डिफ्यूजन. दैट हाई कॉन्सेंट्रेशन की जगह से एक लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ठंडी वाली जगह से पूरी गर्मी वाली जगह जो है वो ठंडी हो गई है, ठीक है. सो to maintain equal distribution, wait, I will come to that. So diffusion is what? Diffusion actually means कि high concentration से low concentration की तरफ चीजें जो है वो जाती है. For example, if you take a cup of water and if you add sugar to it, ठीक है, what will happen? The water will become sweeter. So ये क्या हुआ? High concentration से low concentration वाली जगह पे हमारा जो sugar है वो फैल गया. It made the entire water sweeter, right? So this is referred to as the concentration gradient या chemical gradient. और ये वर्क करता है किस पे? It works on the principle of diffusion. ठीक है, अभी इतना याद रखना. This is called as diffusion. Then another thing that you must know over here is the electrostatic pressure. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? अब मुझे बताइए कि क्या पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलेंगे? No, correct. ना ही, या पॉजिटिव और पॉजिटिव they will not attract, नेगेटिव एंड नेगेटिव they will not attract. Then who will attract? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है कि पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स द नेगेटिव. सो एसेंशियली ऑपोजिट्स दे अट्रैक्ट. ओके, एंड डिफ्यूजन इज व्हाट? डिफ्यूजन इज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें जाती हैं. केमिकल्स जो है वो इसी तरीके से फ्लो करते हैं. नाउ what is actually happening over here कि
जब हमारा न्यूरॉन व्हेन इट इज एट रेस्ट, जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही होती है, सो द न्यूरॉन इज सेड टू बी एट रेस्ट, और उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरीके से दिखती है कि बाहर जो है वो ज्यादा पॉजिटिव, अंदर जो है वो ज्यादा नेगेटिव। एंड हाउ इज इट एक्चुअली मेंटेन्ड? सो इट इज मेंटेन्ड वाया टू फोर्सेस। एक तो है ये दोनों जो हमने बात की है, इसको मिला के कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। नाउ यू टेल मी, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट विल सोडियम ट्राई टू डू? डिफ्यूजन मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो सोडियम क्या करने की कोशिश करेगा? विल इट ट्राई टू मूव इनसाइड और आउटसाइड द सेल? केमिकल ग्रेडियंट क्या करने की कोशिश करेगा? सोडियम को अंदर भेजने की कोशिश करेगा, इनसाइड। गुड। सिमिलरली पोटेशियम के साथ क्या होगा? पोटेशियम अंदर ज्यादा है, तो वो उसको केमिकल ग्रेडियंट क्या करने की कोशिश करेगा? उसको बाहर भेजने की कोशिश करेगा या अंदर? आउटसाइड। गुड, वेरी गुड। सो द केमिकल ग्रेडियंट विल फंक्शन इन दिस मैनर कि सोडियम को अंदर पुश करेगा और पोटेशियम को बाहर पुश करेगा। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल प्रेशर में क्या होगा? सोडियम को क्या करेंगे हम? अंदर भेजेंगे या बाहर? सोडियम को अंदर भेजेंगे या बाहर? लिखा भी है, यस, गुड। सो द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट विल वर्क ऑन पुशिंग द सोडियम इनसाइड एंड इट विल ऑल्सो वर्क ऑन सेंडिंग द पोटेशियम इनसाइड। क्यों? क्योंकि ये व्हाट डू वी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इट वर्क्स इन अ मैनर कि जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो पोटेशियम जो है ये ऐसा नहीं है कि सेल के बाहर की साइड में नहीं है, सेल के बाहर भी थोड़ा थोड़ा पोटेशियम जो है वो रहता है, और सेल के अंदर भी थोड़ा थोड़ा सोडियम जो है वो रहता है। वी विल सी हाउ, बट यस, दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट विल वर्क, कि वो सोडियम को अंदर भेजेगा और सिमिलरली पोटेशियम को भी अंदर भेजने की कोशिश करेगा। एंड द केमिकल ग्रेडियंट विल ट्राई टू पुश द पोटेशियम आउटसाइड एंड सोडियम इनसाइड। इतना क्लियर है हमें? Now you see what is actually happening. ये दो जो ग्रेडियंट्स है ना, ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स जो है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये चाहते हैं इक्विलिब्रियम। द ग्रेडियंट, द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इट एक्चुअली वांट्स इक्विलिब्रियम। आप देखोगे कि कैसे वो सोडियम को अंदर भेज रहे हैं ताकि जो इनसाइड ऑफ द सेल है वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाए या एक समानता आ जाए, है ना? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है ये इक्विलिब्रियम चाहता है। लेकिन इन अ न्यूरॉन यू कैन नेवर रीच टू अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये एक समानता हम नहीं अचीव कर सकते हैं। I can't see the whole thing, ma'am. In both the case, Na is going inside. Then what is the? It's mentioned, then what is the main difference between them? या ये आ रहा है, यहीं पे आ रहा है कि क्या जरूरत है फिर अगर दोनों ही चीजें अंदर जा रही है तो। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है ना ये पैसिवली काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है ये इक्विलिब्रियम चाहता है, और ये चाहता है कि दोनों बाहर और अंदर की जो चीजें हैं वो एक जैसी हो जाए। और ये जो ग्रेडियंट है ये पैसिवली काम करता है। पैसिवली मतलब ये ऑटो, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। देयर आर लीक चैनल्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयंस इन दिस मैनर। लेकिन हमारे न्यूरॉन को सर्वाइव करने के लिए डिसइक्विलिब्रियम चाहिए। ठीक है, if we want the neurons to function, we want them to function in a disequilibrium state. और ये disequilibrium का state कौन मेंटेन करता है? It is maintained by the sodium potassium pump. ठीक है, now what does the sodium potassium pump actually do? कि ये जो मैंने यहाँ पे लीक चैनल्स लिखे हैं ना, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये एक्सन है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, लाइक दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, देयर आर सर्टेन लीक चैनल्स। लीक चैनल्स मतलब ऐसे दरवाजे जो हमेशा खुले रहते हैं, उसको किसी इम्पल्स वगैरह की जरूरत नहीं। तो क्या होता है ना, कभी कभी सोडियम जो है वो
बहुत कम मात्रा में, like there are very few leak channels that are present in the cell membrane, they allow the sodium to enter, और कभी कभी पोटासियम जो है वो बाहर चले जाता है वाया द लीक चैनल्स। ठीक है, तो ये सोडियम पोटासियम पंप क्या करता है, ये लीकी चैनल्स के वजह से जो आयोनिक मूवमेंट हो जाती है, जिसके वजह से सेल जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ने लगता है, तो डिस इक्विलिब्रियम बनाने के लिए सोडियम पोटासियम पंप क्या करता है, ये 3 सोडियम को 3Na को ये बाहर भेजता है और 2 पोटासियम को ये अंदर की तरफ लेकर आता है। एंड दिस इज डन वाया अ like this uses the energy called as the ATP, इसको कहते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो ये एसेंशियली मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, और माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपको पता हो तो वो सेल का पावर हाउस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है। ठीक है, तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूज करके क्या करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ये 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द सोडियम पोटेशियम पंप इट वांट्स डिसइक्विलिब्रियम विद इन द सेल के स्ट्रक्चर में, इसको डिसइक्विलिब्रियम चाहिए, एंड इट वर्क्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट विच इज पैसिव इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो पैसिव है, और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये क्या है, ये एक्टिव पंप है, दिस इज अ एक्टिव पंप। ठीक है, और ये जो सोडियम को अंदर भेजने का काम है कि उसे अंदर क्यों भेजना है, वो अभी जब हम एक्शन पोटेंशियल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सोडियम को क्यों अंदर भेजने की जरूरत है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाली चीज समझ में आ गई कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन कैसे मेंटेन होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मेंटेन्ड वाया 2 फोर्सेस, वन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल and one is the sodium potassium pump। ठीक है, ये 2 फोर्सेस जो है ये हमें हेल्प करती है मेंटेन करने में हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी होती है, इट इज एट -70 मिलीवोल्ट्स। अगर हम न्यूरॉन ये जो अंदर के स्ट्रक्चर को अगर हम इलेक्ट्रोड से कभी मेजर करेंगे ना, तो उसका जो चार्ज आएगा वो आएगा -70 मिलीवोल्ट्स। इफ वी टेक अ इलेक्ट्रोड एंड वी टेक अ वोल्टीमीटर जिसके द्वारा हमें सेल का चार्ज पता चलेगा, तो वो आएगा एट -70। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है कि बाहर ज्यादा पॉजिटिव अंदर ज्यादा नेगेटिव, ये मेंटेन कैसे होता है, ये मेंटेन होता है हमारे एक्टिव पंप से जो है सोडियम पोटेशियम पंप, विच वर्क्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल पंप या ग्रेडियंट जो है ये उसके खिलाफ में काम करके इस तरीके का इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उसको मेंटेन करता है। इतनी चीज समझ में आई? यस, ओके। अब ये आयन या आयोनिक मूवमेंट हमें समझ में आ गई, देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द एक्शन पोटेंशियल, कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, दिस इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो अभी हमने डिस्कस किया। वो बाहर ज्यादा पॉजिटिव अंदर ज्यादा नेगेटिव, दिस इज रेफर टू एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। एंड द पॉइंटर्स दैट यू मस्ट नो ओवर हियर इज दैट कि रेस्टिंग पोटेंशियल की जो चार्ज है वो रहती है -70, और आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, तो आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज हाउ बाहर यू हैव सोडियम एंड देयर आर ऑल्सो chloride anions present in the outer surface, and in the inner side we have anions and we have potassium that makes the inside of the cell very very negative। ठीक है, can we go to the action potential part? अब now how does a neuron actually communicates, और हो क्या रहा है यहाँ पे हम वो देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है या किस तरीके से बिहेवियर्स जो है वो कैरी आउट होते हैं विद इन द ब्रेन। लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सिंपल बिहेवियर्स, लाइक इफ आई एम टचिंग दिस पेन ओवर हियर, आई कैन फील द सेंसेशन, राइट, एंड ऑल्सो आई एम टॉकिंग विद यू, आई एम एक्सप्लेनिंग यू कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे हर जगह पे क्या हो रहा है, एसेंशियली देर आर एक्शन पोटेंशियल्स अकरिंग विद इन माई ब्रेन एट डिफरेंट एरियाज, एंड दैट इज हेल्पिंग मी कैरी आउट ऑल दीज बिहेवियर्स और एक्सप्रेस ऑल दीज बिहेवियर्स। ये जो हम क्या बोलते हैं कोवर्ट बिहेवियर की बात करते हैं या ओवर्ट बिहेवियर की बात करते हैं, ये सारा का सारा एसेंशियली होता कैसे है,
एक्शन पोटेंशियल्स की वजह से तो होता है ना. एंड whenever you are performing any activity, तो इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल्स हो रही है, न्यूरॉन्स जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में. नाउ वी विल सी हाउ डज एक्शन पोटेंशियल अकर्स, और यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तरह से समझते हैं. अब आप मानो आज संडे है और आपको क्या करना है, आपने ऑर्डर किया है, अभी शाम की क्लास खत्म होगी एंड यू आर फीलिंग हंग्री एंड यू वांट टू ईट अ सैंडविच मे बी. ठीक है, आपने ऑर्डर किया है सैंडविच, और ये चीज आपको पता है कि अभी 6:30 को डिलीवरी वाला इंसान जो है वो आने वाला है. यू हैव ऑर्डर्ड एवरीथिंग और ऐसी सारी चीजें चल रही है. नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही डोर बेल बजेगी यू विल गो देयर एंड यू विल टेक योर पार्सल एंड यू विल ईट. तो ये एक्शन पोटेंशियल तो हो रही है ना. यहाँ पे आप गए, आपने पार्सल लिया, आप बैठे और आपने अपना सैंडविच खाया. ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ये न्यूरॉन के अंदर इस एक्शन को कैरी करने के लिए क्या क्या चेंजेस आते हैं. वी विल सी दैट. ठीक है, तो अब जैसे आप बैठे हो, यू आर एक्चुअली वी हैव अ गुड फिगर ओवर हियर, एक्शन पोटेंशियल वाला. Can we go to that image? Yes. See. So now you see you are sitting at 6:30 PM को आप यहाँ पे हो. हमारे न्यूरॉन्स जो है वो -70 पे बैठे हुए हैं. ठीक है, तो मतलब अभी न्यूरॉन में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रही है ना. वी आर एट अ रेस्टिंग फेज. तो यहाँ पे जो चार्ज है वो है -70. नाउ एज सून एज यू हियर द डोर बेल, हमने डोर बेल सुनी कि हाँ हमें पता है हमारे स्विगी वाले भैया आ गए हैं या जोमेटो वाले भैया आ गए हैं. सो दिस इज स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर यू टू गेट अप एंड ओपन द डोर, राइट. तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे कि थ्रेशोल्ड रीच हुआ है. मतलब न्यूरॉन के अंदर जब भी -55 मिली वोल्ट की चार्ज पाई जाएगी, दैट मीन्स the threshold has been achieved and the neuron which was at rest is moving towards a action, या action potential की तरफ हम जा रहे हैं. So essentially what will happen over here is -55 पे हम पहुंच गए, हमने दरवाजा खोला. ठीक है, वी हैव क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ -55 एंड देन यहाँ से फिर हम गए, हमने दरवाजा ओपन किया. अब जब हम दरवाजा ओपन कर रहे हैं ना, तो ये जो हमने आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी कि बाहर जो है वो बहुत ज्यादा सोडियम है और अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पोटेशियम है. तो क्या होगा, एसेंशियली मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो थोड़ी देर के लिए रिवर्स हो जाएगी. ये जो पोलराइज्ड स्टेट में थी, पोलराइज मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे होते हैं ना, दो पोल्स, तो यहाँ पे भी आपको दो पोल्स देखने के लिए मिलेंगे. बाहर जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है, अंदर जो नेगेटिव है. सो दीज आर व्हाट, दीज आर पोलर एंड्स. नाउ वी विल सी अ रिवर्सल इन दिस पोलराइज्ड स्टेट. मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर यहाँ पे रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा. और क्या होगा, यहाँ पे सोडियम जो है ये फटाफट से इन्फ्लक्स करने लगेगा एज सून एज यू रीच द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ -55. ठीक है, so on the membrane there are what do we say, there are channels, there are voltage gated channels. वोल्टेज गेटेड मतलब ये वोल्टेज से ही ये दरवाजे जो है, ये गेट जो है ये ओपन होते हैं. ठीक है, तो अगर ये -55 की वोल्टेज मिलेगी तभी यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो खुलेंगे एंड सोडियम जो है वो इनफ्लक्स करेगा, अंदर आएगा. ठीक है, तो जब भी एक्शन पोटेंशियल होती है देयर इज अ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम. नाउ whenever there is an influx of the sodium, that means the cell is moving towards depolarization. मतलब ये जो polar ends maintain थे वो तो अब नहीं रहे, तो ये depolarization की फेज आ रही है. और depolarization के फेज के दौरान क्या होता है, there is a rapid influx of sodium ions in the cell membrane. ठीक है, उसके बाद ये आपने अपना पार्सल लिया और फिर आप क्या बोलते हैं, पार्सल लेके OTP वगैरह देख के आप अपने पीक पे पहुंचे एंड देन व्हाट हैपेंस, यू कम बैक, यू आप बैठते हो और फिर अपना सैंडविच जो है वो खोलते हो. तो जब हम ये पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल पे पहुंचते हैं ना, तो क्या होता है, अब सोडियम के चैनल्स जो है वो बंद होने लगते हैं. द सोडियम चैनल्स दे स्टार्ट क्लोजिंग डाउन. और क्या होता है, पोटेशियम के भी यहाँ पे चैनल्स है जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है. तो पोटेशियम के चैनल्स जो है ना, दे आर स्लो टू ओपन. पोटेशियम के चैनल्स जो है ये लेट खुलते हैं और लेट बंद होते हैं. And once the sodium channels are closed, the potassium channels start to open. और इसकी वजह से क्या होता है, efflux of potassium, मतलब पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ जाने लगता है. ठीक है, रैपिड efflux होता है यहाँ पे पोटेशियम का. फिर उसके बाद धीरे धीरे अब ये डीपोलराइजेशन की फेज से वापस से हमें किस पे आना है, वी हैव टू रीपोलराइज आवरसेल्व्स.
द न्यूरॉन हैज टू रीपोलराइज इटसेल्फ, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये वाली स्टेट हमें वापस से लानी है, ठीक है। तो रीपोलराइजेशन होता है यहाँ पे, एंड व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, द सोडियम चैनल्स क्लोज, और फिर क्या बोलते हैं, रैपिड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होता है। और ये लाइक आई सेड, पोटेशियम चैनल्स जो है ये धीरे खुलते हैं और धीरे बंद भी होते हैं, ठीक है। तो रीपोलराइजेशन के बाद ना पोटेशियम के चैनल्स जो है ये थोड़े से ज्यादा समय के लिए खुले रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ चला जाता है। अ लॉट ऑफ पोटेशियम गोज आउट ऑफ द सेल, एंड विच लीड्स टू व्हाट, दैट लीड्स टू हाइपरपोलराइजेशन। मतलब ये जो पोलर स्टेट्स थी जहां पे -70 मेंटेन करना था, वो गिर के थोड़ा सा लाइक -80 -90 तक पहुंच जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो थोड़े से पॉजिटिव आयॉन्स थे, पोटेशियम कैरीज अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो नो, तो ये थोड़े से जो पॉजिटिव चार्ज थे वो भी बाहर चले गए हैं, और अंदर क्या रह गया, बड़े बड़े एनियॉन्स रह गए, अंदर बड़े बड़े प्रोटीन्स रह गए जो नेगेटिव चार्ज के हैं। एंड दैट इज वाई द सेल्स बिकम मोर हाइपर पोलराइज्ड, कि बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया है और अंदर जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव स्टेट रहती है। अब ये जब क्या बोलते हैं, हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, सो दिस सेल आल्सो हैज टू कम बैक टू द रेस्टिंग पोटेंशियल। अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे मेंटेन होगी, ये रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन कौन करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप कैसे मेंटेन करेगा, वो 3 सोडियम को अंदर भेजेगा और 2 पोटेशियम को बाहर भेजेगा, ठीक है। सो इन एन एक्शन पोटेंशियल देयर आर फेजेस दैट यू मस्ट रिमेंबर। तो पहले है व्हाट डू वी से, वी हैव द रेस्टिंग पोटेंशियल व्हिच इज एट -70। उसके बाद दूसरा फेज है थ्रेशोल्ड लेवल जो है -55। ये आप बैठे थे घर पे, डोरबेल बजी, आप उठे, आपका थ्रेशोल्ड रीच हुआ। उसके बाद आप खड़े हुए, आप दरवाजे तक गए अपना पार्सल लेने, तो क्या हुआ, पार्सल लेते समय सेल्स जो है वो डीपोलराइज होने लगे। डीपोलराइज मतलब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या बोलते हैं, सोडियम जो है बाहर था वो अंदर की तरफ आने लगा, डीपोलराइजेशन होने लगा, पोलर एंड्स जो है वो हटने लगे, ठीक है। उसके बाद Na चैनल्स जो है वो खुल जाते हैं। Na चैनल्स आर फास्ट टू ओपन एंड फास्ट टू क्लोज, ये हमेशा याद रखना, ये जल्दी खुलते हैं और ये जल्दी भी बंद होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोडियम चैनल्स खुल गए। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल की पीक पे क्या होगा, आप पार्सल ले रहे हो, दरवाजे पे खड़े हो, ओटीपी दे रहे हो, दैट्स द पीक ऑफ योर एक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे धीरे धीरे सोडियम के चैनल्स जो है वो बंद होने लगे। फिर उसके बाद हम आते हैं रीपोलराइजेशन पे, सोडियम के चैनल्स बंद हो गए, मतलब सोडियम जो है उसको वापस अपने रेस्टिंग फेज में जाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम जो है वो उसके चैनल्स खुलते हैं, और पोटेशियम के चैनल्स कुछ थोड़ी लंबे समय तक के लिए खुलते रहते हैं, इस जिसकी वजह से हो जाती है हाइपरपोलराइजेशन। आई होप ये एग्जाम्पल के साथ आपको ये एक्शन पोटेंशियल के फेजेस क्लियर हुए। Why can't I see the chat? I don't know, but well explained. Oh, okay. ठीक है। ओके, नाउ देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर ओवर हियर। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जब डीपोलराइजेशन होता है ना, तो डीपोलराइजेशन के दौरान क्या होता है, एक इट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अच्छा, या यस वी हैव इट। मैम कैन वी गो टू द स्लाइड वेयर वी हैव ये एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी, यस। तो जब यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा, so what essentially happens during the depolarization phase, यहाँ पे आप देखो सोडियम चैनल्स अब ऑलरेडी खुल गए हैं, ठीक है। अब आप ये खाने वाले एग्जाम्पल पे वापस जाओ, आप दरवाजे की तरफ दरवाजा खोलने के लिए जा रहे हो, उस दौरान आपको आपका भाई या बहन या मम्मी बुलाए कि बेटा इधर आओ, या दीदी इधर आओ, भैया इधर आओ, विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट? नहीं, मेरा ध्यान किस पे, मेरा ध्यान मेरे पार्सल पे है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है ना, कि यहाँ पे कोई भी न्यू एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकती। A new action potential cannot occur over here. Why? Because the sodium channels are already open, या तो वो already बंद होना शुरू हो गए हैं। You can see यहाँ पे पीक पे है, पीक पे मैंने आपको क्या बताया, सोडियम के चैनल्स जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, या तो सोडियम के चैनल्स ऑलरेडी एक्टिव है, तो कोई नया एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहीं पे रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कब होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड हमें दिखता है हाइपरपोलराइजेशन के फेज में,
या तो हमें ये दिखता है ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन फेज। ठीक है, अब रीपोलराइजेशन के दौरान क्या हुआ, सोडियम के चैनल्स तो बंद हो गए। अब सोडियम के चैनल्स बंद हो गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वापस से चैनल नहीं ओपन हो सकता है ना। तो इन दैट केस यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस फॉर यू टू एक्ट इन दैट सिचुएशन। Now, for example, you are here, you have taken the parcel, and now when your mummy calls you or your papa calls you, you are going to respond कि हाँ मैं आ रही हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, है ना। So you need a strong stimulus for you to respond. So during the relative refractory period, a new action potential can be generated, but only if the stimulus is very very strong. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में सोडियम के चैनल्स जो है वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। अब बंद हो गए तो ऑब्वियसली दे कैन ओपन अगेन, एंड व्हेनेवर देयर इज अ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, दैट इज व्हेन द व्हाट डू वी से एक्शन पोटेंशियल इज अकरिंग। सोडियम खुलेगा तभी ही एक्शन पोटेंशियल जो है वो होगी। सो दिस इज द डिफरेंस दैट यू मस्ट नो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में नो न्यू एक्शन पोटेंशियल कैन अकर। क्यों? क्योंकि आप देखो, आई डोंट नो वेदर दिस विल बी क्लियर टू यू और नॉट, बट देखो एक्शन पोटेंशियल जो है ये ऐसे नोड्स ऑफ रैनवियर पे जंप करता है। ठीक है, तो इस पार्ट पे डीपोलराइजेशन हो चुकी है, मतलब सोडियम के चैनल जो है वो खुल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे खुल गए, ये नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर पे गया। अब ये पार्ट तो डीपोलराइज हो चुका था। अब जैसे ही ये इधर नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर पे जंप करता है, ये डीपोलराइज होने लगता है। ठीक है, और ये जो पिछला पार्ट था, पिछला पार्ट ऑफ द एक्सन, दैट सेम पर्टिकुलर न्यूरॉन का एक्सन, ये रीपोलराइज होने लगता है। रीपोलराइज मतलब सोडियम जो है उसके चैनल्स क्लोज हो जाते हैं और वो सोडियम को वापस से बाहर भेजने का प्रोसेस जो है वो चालू हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई what do we say, in the relative refractory period, because the previous part of the neuron is in a repolarization phase, a new action potential can occur over here. लेकिन absolute refractory period में ऐसा नहीं होता है। I hope this is clear to you. Yes, okay. Okay. Now one more thing, एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे होती है? एक्शन पोटेंशियल होती है शुरू हमारे एक्सिन हिलक से, जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। सो दिस इज द प्लेस, लाइक एक्सिन हिलक, दिस इज नॉट क्लियर बट आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये एक्सिन हिलक पे सारी की सारी इंपल्स, समझो ये मेरा रिस्ट का पार्ट जो है ना वो मेरा एक्सिन हिलक है। तो डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतना वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस था कि इसको इसने -55 तक पहुंचा दिया, and then from the axon hillock the message will pass down through the axon के भी किस हिस्से पे, nodes of Ranvier पे the message will pass on. So a action potential always occurs at the axon hillock and at the nodes of Ranvier, या axon पे ही हमारा action potential जो है वो occur होता है। ठीक है, always remember this part. एंड whenever a action potential is occurring, उसके बाद क्या होता है, इस सेम न्यूरॉन में ये जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाती है, उसके बाद एक्शन एक्सन्स में से निकलता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, सो whenever there is a generation, there is a neural impulse in a neuron, it leads to what? It leads to the release of neurotransmitters from the axon terminals. Just a second. Yes, so yeah, we have a clear image over here कि यहाँ पे जैसे ही ये एक्सन हिलक से आया मैसेज, ये इम्पल्स जनरेट हुई, इम्पल्स जनरेट होने के बाद क्या होता है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो सिक्रीट होने लगते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जब सिक्रीट होते हैं दे आर रिलीज्ड इन द साइनैप्स, और साइनैप्स के बाद जो है, जो ये है हमारा पोस्ट न्यूरॉन, द पोस्ट न्यूरॉन विल टेक दिस, ये जो यहाँ पे मान लो न्यूरोट्रांसमीटर, अब आई होप आपको एक दो या थोड़े न्यूरोट्रांसमीटर्स पता ही होंगे। सो वी हैव गाबा। गाबा क्या है? व्हाट इज गाबा? एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी? पता है, इनहिबिटरी। ठीक है, और ग्लूटामेट?
ग्लूटामेट, एक्साइटेटरी, गुड गुड गुड, चलो इतना हमें क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड. सो वी हैव गाबा विच इज व्हाट, विच इज अ मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. इनहिबिटरी मतलब ये नेक्स्ट न्यूरॉन को जाके क्या करेगा, इट विल इनहिबिट द नेक्स्ट न्यूरॉन. And when a neurotransmitter that is inhibitory in nature, when that is secreted, it makes the next post neuron hyperpolarized. Yes. ठीक है, जब भी कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर विच इज इनहिबिटरी इन नेचर, व्हेन दैट इज सिक्रीटेड, तो ये क्या करता है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन को जाके हाइपर पोलराइज कर देता है. हाइपर पोलराइज मतलब क्या, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल होगी नहीं होगी. And whenever in excitatory neurotransmitter like glutamate is secreted, then what will it do? That will increase the chance of depolarization. जब भी ग्लूटामेट जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं, ये डीपोलराइजेशन के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, नाउ विद दिस इट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेफर्ड टू एज ग्रेडेड पोटेंशियल्स. नाउ व्हाट आर ग्रेडेड पोटेंशियल्स? अब देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स जब सिक्रीट होते हैं ना, देन दे हैव डिफरेंट एक्शंस ओवर द पोस्ट न्यूरॉन का जो साइनैप्स है या पोस्ट न्यूरॉन पे इसके डिफरेंट जो एक्शंस है वो हो सकते हैं. ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल व्हेनेवर ग्लूटामेट इज सिक्रीटेड, अब ग्लूटामेट यहाँ साइनैप्स में दिया एंड इट विल बी टेकन बाय द डेंड्राइट पार्ट. डेंड्राइट पे क्यों? क्योंकि डेंड्राइट हमारा रिसीविंग एंड है. ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स पहले तो लॉक एंड की फैशन में काम करते हैं. मतलब यहाँ पे अगर ग्लूटामेट दिया है और ये नेक्स्ट पोस्ट न्यूरॉन पे अगर उसके रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स मतलब दैट रिसीव्स इट. ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिए जाते हैं, अगर डेंड्राइट पे इसके मॉलिक्यूल्स है, इसके रिसेप्टर्स है, तभी ये पोस्ट न्यूरॉन से जाके बाइंड होगा. अब इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है वो ग्लूटामेट के लिए प्रेजेंट है. ठीक है, तो नाउ व्हेनेवर glutamate या any excitatory neurotransmitter is given out in the synapse and that is taken by the post neuron, अगला न्यूरॉन जो है वो उसको ले लेता है. ठीक है, तो ये excitatory है. so there are chances कि ये क्या करेगा, this will make the threshold level reach at -55. ठीक है, अब कोई इस तरीके का स्टिमुलस आया, ये क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी से, ग्लूटामेट जो है, इट हैज द पोटेंशियल टू मेक आवर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन टू रीच द -55 का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो वहां तक रीच करने के लिए उसको स्टिमुलेट कर सकता है. लेकिन यहीं पे अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी है, दैट विल मेक द सेल मोर डीप हाइपरपोलराइज, मतलब -70 से भी नीचे उसकी वो पोटेंशियल को क्रिएट कर सकता है. ठीक है, सो ग्रेडेड पोटेंशियल्स आर लोकल चेंजेस, लोकल पोटेंशियल चेंजेस विद इन द सेल की मेमोरी. अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ कि ये एक्चुअली में ग्रेडेड पोटेंशियल्स होती क्या है एंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर. नाउ फॉर एग्जाम्पल यू सी, आज फिर से हम पार्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि संडे है. अब आप मानो आपके घर पे यू हैव कॉल्ड योर फ्रेंड्स टुडे एंड यू आर डिसाइडिंग टू ऑर्डर फूड. आप फिर से हम खाने पे आ गए, पर कोई बात नहीं, चलिए. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 सेकेंड. हम फिर से खाने पे आ गए. यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू ऑर्डर. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे योर कुछ फ्रेंड्स आपके बोल रहे हैं कि चलो हम पिज्जा मंगाते हैं. ठीक है, कुछ ने बोला पिज्जा मंगाओ, कुछ ने बोला बर्गर मंगाओ. एसेंशियली कि लोग बोलते हैं जंक फूड. ठीक है, जंक फूड मंगाओ. और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो हेल्दी खाना चाहिए, वजन बहुत बढ़ रहा है. ठीक है, वी शुड स्टिक टू हेल्दी फूड ऑप्शंस लाइक सैलड्स एंड ऑल. वी शुड स्टिक टू, मे बी घर पे ही बना लेते हैं दाल चावल. गेट टुगेदर है तो क्या हुआ, हर समय ही होते रहते हैं हमारे गेट टुगेदर्स. तो ठीक है, सो व्हाट हैपेंस हियर, अब अगर आपके कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं, हमें तो जंक फूड ही ऑर्डर करना चाहिए, एंड देन यू एंड अप ऑर्डरिंग योर जंक फूड. कुछ भी आपने ऑर्डर किया, जो भी आज आपको खाने का मन है वो आप सोच लो. ठीक है,
पिज्जा, पास्ता, anything that you love. ठीक है. And if you end up ordering a junk food, so this is your action potential. मतलब यहां पे आपको एक्साइटेटरी मैसेजेस आ रहे थे, and the neuron was receiving excitatory postsynaptic potentials which led to the action potential of ordering junk food. ठीक है. और यहीं पे सिमिलरली अगर मैं IPSP की बात करूं, I will not write here healthy, but I will write here don't order food. I will write here don't order food. Don't order outside food. ठीक है. तो अगर इफ यू हैव देयर आर 10 फ्रेंड्स, ठीक है, 10 में से 8 बोलते हैं कि चलो बाहर से मंगाते हैं और 2 कहते हैं कि डोंट ऑर्डर आउटसाइड फूड, देन व्हाट विल हैपन? यू माइट एंड अप ऑर्डरिंग जंक फूड. या तो ये 2 लोगों ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया या इतनी स्ट्रांगली बोला, या ये 2 लोग आपसे काफी ज्यादा क्लोज हैं, एंड देन यू एंड अप agreeing to them. So here what you will do, you will not order food and you will end up eating खिचड़ी at home or maybe दाल चावल at home. ठीक है. तो एसेंशियली होता क्या है, हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे ना एक्साइटेटरी मैसेजेस आते हैं या इनहिबिटरी मैसेजेस आते हैं जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि क्या एक्शन पोटेंशियल होगी या नहीं होगी. ठीक है. सो अ लॉट ऑफ एक्साइटेटरी पोटेंशियल्स दे समेट मतलब जैसे ये बहुत सारे मैसेजेस आए ना, दे समेट एट द सेल मेम्ब्रेन एंड दे लीड टू डिसाइडिंग वेदर अ एक्शन पोटेंशियल विल अकर और नॉट अकर. समझ में आया? अगर ये फूड एनालॉजी से नहीं समझ में आया, देन आई विल एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट मैनर. आई विल मूव ऑन टू दैट. एक बार ग्रेडेड खत्म हो जाए तो मैं समझाती हूँ कि दोनों के बीच में अंतर क्या है. प्लीज एक्सप्लेन लास्ट पार्ट अगेन. ठीक है, चलिए. तो होता क्या है ना, सी न्यूरॉन्स के अंदर जब भी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है, उसके बाद दे बाइंड टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. ठीक है. अब ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे मैसेज आया है वो या तो एक्साइटेटरी हो सकता है. एक्साइटेटरी मतलब ये न्यूरॉन को एक्शन पोटेंशियल करने के लिए मजबूर करेगा, या इट विल मूव द न्यूरॉन पोटेंशियल टूवर्ड्स डीपोलराइजेशन. ठीक है. एक्साइटेटरी हमेशा डीपोलराइजेशन की तरफ लेके जाएगा. ठीक है. And whenever there is an inhibitory message, like for example, whenever GABA is secreted, what will that do? That will make the cell more hyperpolarized, no? क्योंकि उसका काम ही है inhibit करना. तो अब इस एग्जाम्पल में अगर मैं आपको समझाऊं, that a lot of people tell you that you must order this, you are deciding कि क्या करना है. So these are excitatory messages कि चलो यहाँ पे हम लोग इसी को चेंज कर देते हैं. What we will do over here, we will just say कि let's order food. खाने का समय हो गया है, let's order food. And don't order food. यहाँ पे we will write don't order food. Outside food नहीं, but खाना ही मत मंगाओ. चलो 8 बजे का समय है, 8 बज रहे हैं. So we will see let's order food and don't order food. ठीक है. तो अब 10 लोग हैं आपके पार्टी में, कुछ कह रहे हैं कि चलो खाना मंगाते हैं, 8 बज गए हैं, मुझे जल्दी जाना है, या आई एम हंग्री, या like I usually eat by 7 p.m. but it's already 8 p.m. and so on and so forth. Now if you listen to 8 people and you end up ordering the food, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये एक्शन पोटेंशियल ही होगी ना यहाँ पे, क्योंकि आपको एक्साइटेटरी मैसेजेस आ रहे हैं. यू विल टेक योर फोन एंड यू विल ऑर्डर द फूड. So that will be the action potential. And if some people, like 8 of the 10 people are saying कि नहीं अभी नहीं, we just had snacks, अभी खाना नहीं मंगाते हैं, रहने दो, या थोड़ी देर के बाद ऑर्डर करेंगे, then you will not order food at that particular time. So what is this? Your brain is getting inhibitory impulses कि अभी एक्शन नहीं करनी है.
so you will not pick up your phone and you will not order the food. ठीक है, तो एसेंशली ब्रेन के अंदर क्या होता है ना, इसी तरीके के एक्साइटेटरी मैसेजेस या इनहिबिटरी मैसेजेस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे सबमेट होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। और अगर ऐसे ही बहुत सारे एक्साइटेटरी मैसेजेस लाइक ऑर्डर फूड, आई एम हंग्री, 8 बज गए हैं, आई जनरली ईट फूड एट 8 o'clock, या थिंग्स लाइक दैट, ये तो बहुत सारे मैसेजेस हुए ना। तो यही बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे हो जाते हैं विच लीड टू एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और यहीं पे इफ देर आर अ लॉट ऑफ मैसेजेस सेइंग दैट डोंट ऑर्डर फूड, अभी भूख नहीं है, अभी स्नैक्स खाया, आई एम नॉट हंग्री, थिंग्स लाइक दैट, these are what these messages will not let you order the food, ऐसे ही होगा ना। so depending on the message that has been received on the post synaptic neuron, the messages will summate on the post synaptic neuron and that will help us decide कि action potential होगी या नहीं होगी। तो एसेंशियली ग्रेडेड पोटेंशियल्स जो है ना, ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि किसी बात पे एक्शन होगा या नहीं होगा। समझ में आया? एंड ग्रेडेड पोटेंशियल्स आर व्हाट डू वी से, फर्स्ट आई विल से अबाउट एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल्स जो है ना, ये ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, मतलब या तो एक्शन होगी या तो एक्शन नहीं होगी। जैसे पास या फेल, दो कैटेगरी होती है ना, ऐसा बीच का तो कुछ नहीं होता कि थोड़ा पास हो गए या थोड़ा सा फेल हो गए, थोड़े से मार्क्स के लिए रह गए, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जो है ये ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब -55 रीच हुआ तो एक्शन पोटेंशियल होगी ही होगी। एंड messages here means yes, the neurotransmitters carry the messages, and whenever the neurotransmitters are given out on the postsynaptic neuron, there are ligand gated channels that are open. Ligand gated मतलब ligate नहीं, ligand gated, sorry. yes, ligand gated channels खुलती है, तो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स जब भी सिक्रीट होते हैं और अगर वो बाइंड हो जाते हैं पोस्ट न्यूरॉन पे, देन लाइगेंड गेटेड चैनल्स आर ओपन। लाइगेंड मींस मॉलिक्यूल्स, मतलब इसको कोई मॉलिक्यूल चाहिए, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल चाहिए जिसके द्वारा ये जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू एक्शन पोटेंशियल। यस, नाउ एक्शन पोटेंशियल जो है ये नॉन डिक्रीमेंटल है, मतलब ये सेम ही एम्पलीट्यूड से कंडक्ट होते हैं थ्रू आउट द एक्सिन, मतलब यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे -55, यहाँ पे -50, मतलब -55 की स्ट्रेंथ से आएगा। सिमिलरली इट विल मूव ऑन इन दिस फैशन ओनली, सो दैट इज नॉन डिक्रीमेंटल, मतलब ये कांस्टेंट रहती है, इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, या तो अगर +30 है, then it will be conducted with the same impulse only, same strength only, they do not decrease. And then action potentials are unidirectional. यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये एक्सिन हिलक से चालू होती है और ये एक्सिन के टर्मिनल्स तक जाती है। इट कैन नॉट कम इन अ रिवर्स फैशन, इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम अ एक्सिन हिलक टू द एक्सिन टर्मिनल। ठीक है, दिस इज हाउ एक्शन पोटेंशियल्स आर conducted. And if we move on to the difference between action potential and graded potential, you will see, ma'am, can we go to that slide? Yes. अब जो graded potentials है ना, इसमें क्या है, like हम क्या बोलते हैं, we will write about the channels. So graded potentials always lead to ligand gated channels. Ligand मतलब molecules. तो वो molecule neurotransmitters are what? They are chemicals, no? तो अगर वो स्पेसिफिक केमिकल के रिसेप्टर्स पोस्ट न्यूरॉन पे है, अगला जो न्यूरॉन है वहां पे है, देन इट विल लीड टू लाइगेंड गेटेड चैनल की ओपनिंग। ठीक है, और सिमिलरली एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक्शन पोटेंशियल्स आर वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज मतलब अगर सेल के अंदर क्या बोलते हैं, -55 थ्रेशोल्ड, -55 की थ्रेशोल्ड आएगी तभी वो खुलेंगे। देन ये जो है ग्रेडेड पोटेंशियल्स, दे डोंट वर्क ऑन ऑल और नन प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है, ये ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम नहीं करते, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, दे यूजुअली
They only help us in deciding whether the post neuron will either become depolarized or hyperpolarized. ठीक है? And here action potentials always function on a all or none principle. जैसे पास और फेल होता है ना, बीच का कुछ नहीं आता. कट ऑफ पार किया तो पास, कट ऑफ पास नहीं किया तो फेल, मतलब यू हैवंट क्लियर्ड फॉर दैट एग्जाम. तो बस ये एक्शन पोटेंशियल बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह है. कट ऑफ पास किया तो एक्शन पोटेंशियल होगी, कट ऑफ पास नहीं किया तो एक्शन पोटेंशियल नहीं होगी. ठीक है? उसके बाद दीज आर डेक्रीमेंटल इन नेचर. डेक्रीमेंटल मतलब इसकी जो वैल्यू है ना वो या जो इसका स्ट्रेंथ है दैट कैन डिक्रीज. मतलब ये आगे पहुंचते पहुंचते इसकी जो वैल्यू है या इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो सकता है. बट इफ वी टॉक अबाउट एक्शन पोटेंशियल तो ये यहाँ पे इट इज ऑलवेज कैरीड विद द सेम थ्रेशोल्ड लेवल. यहाँ पे थ्रेशोल्ड जो है वो चेंज, यहाँ पे थ्रेशोल्ड तो एक्चुअली रिक्वायर्ड ही नहीं है. वी डोंट रिक्वायर एनी थ्रेशोल्ड. यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड की जरूरत है क्या ग्रेडेड पोटेंशियल में? नहीं, दीज आर लोकलाइज्ड, लोकल पोटेंशियल्स है, इसको कोई थ्रेशोल्ड की जरूरत नहीं. लेकिन एक्शन पोटेंशियल को किसकी, दे रिक्वायर अ मिनिमम -55 का थ्रेशोल्ड यहाँ पे चाहिए ही चाहिए. एंड ग्रेडेड पोटेंशियल्स कहाँ पे होंगे? ग्रेडेड पोटेंशियल्स डेंड्राइट्स पे होते हैं और सोमा पे होते हैं. क्यों यहाँ पे होते हैं? बिकॉज द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर गिवन आउट ऑन द साइनैप्स, और साइनैप्स से फिर वो जो मैसेज है वो कहाँ पे जाता है? सेल बॉडी या डेंड्राइट पे जाता है. ठीक, लाइक इट गोज ऑन द डेंड्राइट एंड देन फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्स टू द सोमा, सेल बॉडी पे जाता है. और एक्शन पोटेंशियल जो है ये हमेशा दे आर कैरीड आउट ऑन द एक्सन हिलक एंड द एक्सन की मेम्ब्रेन पे होती है एक्शन पोटेंशियल. साथ साथ में एक्सन के टर्मिनल्स पे भी की जाती है. ठीक है? तो अगर मैं ग्रेडेड पोटेंशियल की बात करूं तो मानो कि यहाँ से बहुत सारे एक्साइटेटरी मैसेजेस आए हैं एंड इट हैज accumulated a lot of voltage which is -55. ठीक है? यहाँ से ग्रेडेड पोटेंशियल्स काफी सारी आई है डेंड्राइट्स के कुछ कुछ हिस्सों पे. ठीक है? a lot of excitatory messages have been received on this one specific neuron. और यही वोल्टेज जो है या यही एनर्जी जो है ये यहाँ अक्यूमुलेट हो जाती है और मानो -55 यहाँ की वोल्टेज क्रॉस हो जाती है, देन इट विल लीड टू एक्शन पोटेंशियल. ठीक है? तो एक्शन पोटेंशियल हमें ग्रेडेड पोटेंशियल जो है ये हमें हेल्प करने में डिसाइड करता है कि वेदर एक्शन विल अकर और नॉट. एंड विद दैट आई एम डन विद टुडेज टॉपिक. वी विल मूव ऑन टू द MCQs. बट बिफोर दैट आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Also, ma'am has already explained all the definitions that are written here. But if anybody just wants to read the definition, I'm presenting the slides as well. So for 2 minutes, I'll be presenting this. Then we can move on to the MCQ part. And yes, if anybody has any questions, you can ask that as well. You can unmute yourself and ask. No questions, I'm assuming. So then we'll move on to the PYQ part. PYQ and MCQs. चलिए, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ माइलिन इज टू, बताइए. डी. बी, सी, ए. More answers? चलिए, C will be the correct answer. Increase the rate of propagation of an action potential.
तो एक्शन पोटेंशियल को तेजी से करने में ये मदद करता है। एम्पलीट्यूड कैसे इंक्रीज होगा? अभी हमने डिस्कस किया ना कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो सेम एम्पलीट्यूड से कैरी होता है एक्सिन के ऊपर, ठीक है। इट इज ऑलवेज कैरीड विद द सेम स्ट्रेंथ, सेम एम्पलीट्यूड थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। चलो, second one, the site where an action potential is most commonly initiated is very simple, डी। चलो, बहुत बढ़िया। एक्सिन हिलक पे होती है, एक्सिन हिलक से एक्सिन तक जाती है, वेरी गुड। चलो, communication within a neuron is dash, whereas communication between neuron is dash. See, very good। चलो, so a communication within a neuron, मतलब जो हम neural impulse की बात करते हैं, I might have missed out on this point. Yes, so whenever we talk about communication within a neuron, like neural impulses and all, so that is इलेक्ट्रिकल। और कम्युनिकेशन बिटवीन अ न्यूरॉन, मतलब जब न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं, एंड दैट इज हाउ न्यूरॉन्स दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। सो दैट इज केमिकल इन नेचर, सो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल विल बी द करेक्ट आंसर। Repolarization occurs primarily because K leaves the neuron. वेरी गुड, दिस विल बी द करेक्ट आंसर कि पोटेशियम जो है ये बाहर की तरफ जाता है और उसी की वजह से रीपोलराइजेशन जो है वो होने लगती है। साथ साथ में द सोडियम चैनल्स दे आल्सो क्लोज, द सोडियम चैनल्स दे बिकम इनएक्टिव एंड द पोटेशियम कीप्स ऑन लीविंग द न्यूरॉन या इफ्लक्स होते रहता है, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन की फेज आती है। करेक्ट। Neural signals travel along a neuron in what order? So quick to answer, oh my god. सी वेरी गुड। चलो, सो न्यूरल इम्पल्स जो है डेंड्राइट से होते हुए सोमा, एक्सिन एंड देन एक्सिन टर्मिनल्स तक जाती है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स गिवन बिलो? ठीक है, सो 4-1 सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो एसेंशियली न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ये हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं, एंड दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से ही न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, और ये अमीनो एसिड्स या एसेंशियली प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे डाइट से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिंथेसाइज्ड एंड दे आर स्टोर्ड इन द टर्मिनल वेसिकल्स। ये बन के सिंथेसाइज होके टर्मिनल वेसिकल्स में स्टोर कर दिए जाते हैं। उसके बाद वहां से रिलीज होंगे व्हेनेवर the neurotransmitters will be released, and then once they are released they will bind on the receptor sites on the postsynaptic neuron, and then they will lead to the postsynaptic potential. They will change the potential, membrane potential of the postsynaptic neuron, ठीक है। चलो, when you apply perfume, the molecules diffuse from areas of high concentration to areas of low concentration. In the context of neurons, this principle best explains what?
ठीक है, करेक्ट. The movement of ions across the membrane following a concentration gradient. मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जा रही है. कोई भी अच्छा सा परफ्यूम लगा के आता है तो पूरे रूम को महका देता है ना. So this is referred to as the movement of ions across the membrane following a concentration gradient. Against किसी ने बोला था तो वो गलत है. चलो. A typical neuron has a resting membrane potential of about dash, and to generate an action potential, a threshold of dash is required. So quick to answer. I'm so glad to see that. A. ठीक है, चलो. -70 मिलीवोल्ट जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, और फिर उसके बाद थ्रेशोल्ड लेवल जो है, थ्रेशोल्ड वैल्यू इज -55. वेरी गुड. The dash pump maintains the electrochemical equilibrium in a neuron. Sodium potassium pump. C. चलो, very simple, very good. During the rising phase of the action potential, membrane permeability increases dramatically for ठीक है, गुड, वेरी गुड. सोडियम के लिए जो परमिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा ओपन हो जाती है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन के दौरान द सेल इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम कंपेयर टू सोडियम. ठीक है, रेस्टिंग के दौरान द सेल इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम दैन टू सोडियम, and in rising phase action potential में it is more permeable to sodium than the potassium के channels. Okay, then that will be it. So yes, thank you so much, Dr. Diksha, for covering the unit, and I think you covered so many new terms and new topics as well. So if anybody wants to ask any question, you can just take a minute and ask the questions either in the chat box or maybe you can unmute yourself. Yes, I would love to answer all your questions. कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो प्लीज बता देना. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Oh, you are welcome, and I hope मैंने सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. कोई कंफ्यूजन, कोई study advice like books. I think you have two great mentors over here. Study advice और books के लिए विधि मैम एंड मानवी मैम. बट मेरे तरफ से 2-3 बुक्स के नाम मैं आपको बता सकती हूँ जो जनरली हम यूज करते हैं बायोसाइकोलॉजी के लिए. सो वन इज स्पिनेल, वन इज कैलेट की बुक, and one basic book that you can follow is Atkinson की book you can follow for biopsychology particularly. And what I refer for biology part, कभी कभी जब समझ में नहीं आती है चीजें, then I personally refer to 11th and 12th की NCERT biology की books, because some of the concepts are explained in very simple manner in psychology के books में. तो जो एक्चुअल में लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है ना कि ऐसा क्यों, वो जनरली बायोलॉजी के बुक्स में दिया होता है. ये क्या बोलते हैं, 11th और 12th की बुक्स के अंदर. सो आई जनरली रेफर टू दोज बुक्स एज वेल फॉर बायो पार्ट ओनली, साइंस वाली बुक्स. Am I stuck or what? Oh no, you're audible. I think there are no other questions. Okay, no problem. And yes, we would also just like to inform you all that those who have already registered for our MClinsci course, and if in case some people are also thinking to register, so I just wanted to inform and update that Dr. Diksha would be taking up the complete biopsychology unit in the course. She has been teaching a lot of students according to the RCS syllabus in her university also. She's a assistant professor. She has a specialization in this subject, biopsychology. This is why she has been a great resource person for this subject. And if in case you liked her explanation, if in case you think that you want to learn the complete biopsych unit, because that is one of the most difficult topics people actually consider when it comes to MPhil preparation from her, then definitely you can join our further sessions as well. I would just like to add कि biopsychology is like all or none. या तो आता है या तो बिल्कुल नहीं आता. ठीक है, so ये भी action potential की तरह ही है.
either you know the answer in exam or you don't know the answer in the exam. So biopsychology is one part. Yes, ma'am, can you read it? Actually, मुझे दिख नहीं रहा है. Ma'am, the semi-permeability of the cell membrane is similar to Ma'am, the semi-permeability of the cell membrane is similar to the leak channels. सेमी परमी नहीं, सेमी परमिएबल है क्योंकि यहाँ पे लीक चैनल्स प्रेजेंट है. अब लीक चैनल्स क्या होते हैं? ये लीक चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं. दे आर नॉन गेटेड चैनल्स, ठीक है. और यही लीक चैनल्स जो है सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल, सेमी परमिएबल बनाते हैं. लाइक जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ही है ना, दैट इज सेमी परमिएबल. और इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वी हैव लीक चैनल्स, वी हैव वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड वी हैव लाइगेंड गेटेड चैनल्स. तो लीक चैनल्स जो है वो सोडियम के लिए भी है, क्लोराइड के लिए भी है, वो पोटेशियम के लिए भी है. तो यही लीक चैनल्स के वजह से ये नॉन गेटेड है, मतलब इसको कोई एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए, इसे कोई वोल्टेज नहीं चाहिए खुले रहने के लिए. दे आर ऑलवेज ओपन. And because the nature of the cell membrane is such that it is semi-permeable, that is why we have leak channels over the membrane structure. ऐसा है. I hope I have answered your question. Yes, ma'am. Okay, thanks, Hatan. You're welcome. Okay, any other questions or any other query that you have? Yes, I just wanted to add that for this question, you can also refer to this slide. You can read the 3 points here. You'll also get that which ions can actually move out, which ions can't move out at all. So all these 3 terms are also important. If anybody is interested, you can just take a moment to read this also. Yes, this is more helpful. सो आयॉन्स इनसाइड द न्यूरॉन, इंट्रासेल्यूलर में पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है. उसके बाद बाहर में इट इज लो इन कॉन्सेंट्रेशन. सोडियम सिमिलरली इज लो इन कॉन्सेंट्रेशन इन द इनसाइड और बाहर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. क्लोराइड इज लो इन इनसाइड एंड इट इज हाई आउटसाइड. कैल्शियम जो है दैट इज वेरी लो इनसाइड और बाहर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. एंड ऑर्गेनिक एनियॉन्स लाइक आई टोल्ड यू, एनियॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयॉन्स. ठीक है, उसकी they are negatively charged molecules. So inside they are in heavier concentration और बाहर they are absent या बहुत कम होते हैं बाहर भी. There are little anions and negatively charged particles बाहर की साइड में भी, but बहुत कम होते हैं वो. Okay, I think the doubt is clear. She has mentioned. Thanks. Okay. If there are no more questions, I think we can end the session now. Thank you so much, Dr. Diksha, for covering the unit and also giving so easy to understand examples, even when the topic was so complex. Thank you for having me. And I loved interacting with each one of you. I'm so glad to see that you have such clarity and you all were so quick in answering all the MCQ questions and the PYQ questions. I'm really glad to see the level of clarity that all the students of Cyclopedia have. I believe you have done a great job in explaining these topics to them as well. Thank you so much. So yes, we can end the session now. Okay, thank you so much. Thank you. Bye. Bye-bye.